Hello to everyone. This is Dr. Raghuram from Department and Post-Graduation Department and also the Pharmacy of Baishaja Kalpana and Rasha Shastra from our college, prestiged institution, A.L.N. Rao Ayurvedic Medical College, Koppa. So today with the guidance and also with support and also his expertise, Dr. D.K. Mishra sir, head of the department of Baishaja Kalpana and Shastra. Sir will be taking me on a tour to give a demo and also explain what new renovations have been made in the department and also in the pharmacy, what new equipments have been installed and how the progression is on. So our department was always fascinating under his guidance, able guidance, and everything was spot on, and some changes have been made. So this is exclusive video and pictures for all of you, all our alumnus from this particular institution, to have a glance at what renovations and what modulations, what changes, what fantastic inclusions have been made in the department. Let me go to a small tour of the department and pharmacy with our head of the department, Honorable D.K. Mishra sir. So this is the entrance part of our pharmacy related to Rasa Shastra and Baishaja Kalpana department. You can see puja has been done a couple of days ago. So because some additions, some new inclusions have been done in the department, in the pharmacy for the technical purposes of preparing the medications. Already it was equipped department. Few additions, small additions have been made in the department. So this is the entrance of our department. When we go inside, we will see the first structure. So that is the entrance part of our pharmacy. So what are the inclusions, what has been kept there, what is the arrangement, we will see as we peep in through the entrance of the pharmacy, and I'll be taking you right into the pharmacy. So here we can see a lot of kalva yantras, so what we can call it as pestles and mortars. These are used to grind the medications, so you can see a lot of them. So these are the seating areas. So here is the area where the practicals for the students are conducted, students and post-graduation scholars, for the initial what we can call it as lessons of Rasha Shastra and Baishaja Kalpana are taught here. So for grinding, so that is the first architectural expertise what the students should be getting. So to hold the pestle and also to also the crush some herbs and drugs and make them into fine powder, sieve them under, and all those procedures are taught from. So we can call it as an initial school from after the initial theoretical classes. This is the initial school of learning for students. So this is the seating arrangement also. So many kalvas have been placed here. You can see medicine Sitopaladi Churna was under preparation right now. So that shall be continued in the afternoon session. So you can see a lot of equipments here. So this is the manufacturing unit here. We will not take an entry right from here. So later, in the later part of the video, you can see the entire manufacturing unit, the tour of which was ably guided by our Honorable Professor D.K. Mishra sir, head of the Department of Rasha Shastra Baishaja Kalpana of our college, A.L.N. Rao Ayurvedic Medical College, Koppa. So that part of the video, you need to wait to see after this particular section. So that tour was introduced and also beautifully explained by our Honorable Mishra sir. So this is as I said, the first part of the pharmacy. Immediately after the entrance, we get to see different types of kalvas you can see here. So again here also you can see the kalva yantras, lot of them. The old ancient and age-old system of grinding not only the herbs, some masala dravyas and some food ingredients were also crushed in these equipments, are still being crushed in traditional homes. So we have, so you can see here, puja has been done. So because these are all the old equipments what we have, but the puja has been done because of the renovation part and also the renovation day. So as you can see, this is what we can call it as the blackboard on which every particular practical, whenever it is conducted, the new preparation, the ingredients are written by the HOD or the concerned teacher there. So that the students can document this and write down and be very thorough with what are the ingredients, what quantity it has to be taken. Here the method of preparation and also the ingredients of Sitopaladi Churna has been written. So last but not the least, it in fact first but not the last, I should tell, Lord Dhanvantri, God of Ayurveda, our God,
So with the blessings of whom almost all the tasks, not only in this department, everywhere in Ayurveda will be carried on. So all credits goes to Lord Dhanvantri and the holy feet of Lord Dhanvantri. You can see wonderful idol of Lord Dhanvantri there. After the puja has been conducted, everyday puja will be conducted to Lord Dhanvantri. So again, Honorable Mishra sir is his expertise guidance has kept this department going in a very fantastic way. So this is the first part of our video, and in the next part we will enter the manufacturing unit, and you can see how beautifully everything has been engineered and kept in places, apt places, and how things are done. What is the functional aspect of this particular department in the manufacturing unit, ably guided by our Mishra sir. As I've already said, our Honorable Mishra sir is there here, so he has permitted us, and also he is kind enough to take us on the tour, take me on the tour of explaining what exactly are the inclusions and new inclusions and renovations of the department. Here is our Mishra sir, so he is already known to all of you, no introduction is needed. Mishra sir, बताइए, so ये नया inclusion है डिपार्टमेंट में हमारे फार्मेसी में? खास करके जब हमारा कोई भी प्रिपरेशन होता है तो सबसे पहले हमें चूर्ण की आवश्यकता होती है। चूर्ण अगर लार्ज स्केल में हम करें तो मैनुअल उतना नहीं हो पाता, इसके लिए टेक्निक डेवलप किया। आज आप ये मशीन देख रहे हैं, इसको डिसइंटीग्रेटर के नाम से जाना जाता है। हमें पर आवर इसकी कैपेसिटी जो है 40 kg किसी भी ड्रग को क्रश करके और यवकुट चूर्ण में कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसके लिए मैनुअल का यूज करें तो बहुत टाइम लगता है उसको चूर्ण करने में, कटिंग करने में। इसके लिए आज हम तो ये डिसइंटीग्रेटर जो है ये 10 HP के मोटर से 3 फेजेज लाइन पे चलता है। ये देख रहे हैं, ये चेम्बर है, यहाँ से हम कोई भी ड्रग डालेंगे तो उसको स्थूल पाउडर के रूप में, यवकुट चूर्ण के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उस यवकुट चूर्ण से हम पल्वराइजर में फाइन पाउडर करेंगे। तो मठपति सर उसको ऑन कीजिए, ग्रीन कलर का। सर ये 40 किलो का इकट्ठा पाउडर कर सकते हैं आप बोले ना? हाँ, 40 पर आवर 40 केजेस, मतलब एक दिन में कितना केजेस कर सकते हैं सर? एक दिन में आवश्यकता अनुसार इसकी जो क्षमता है 1 आवर में 40 kg कर सकता है। अब फार्मेसी के कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि पर डे उसका कितना प्रोडक्शन है, उसके आधार पे इसकी क्षमता पर आवर 40 kg करने की है। ऑन कीजिए, आप यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से रेड कलर। अब ये चैम्बर में कलेक्ट हो गया। आप यहाँ से कलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीजर फाइन पाउडर के लिए अलग मशीन का यूज कर सकते हैं।
ये सूक्ष्म चूर्ण में परिणति इसमें नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? स्थूल चूर्ण। किसी भी रॉ मटेरियल को क्रश करने की क्षमता है इसका। तो सबसे पहले हम कोर्स पाउडर करेंगे। कोर्स पाउडर करने के बाद इसका पल्वराइजर का हम यूज कर सकते हैं। पल्वराइजर में आप देख रहे हैं यहाँ से ड्रग स्थूल चूर्ण अलग अलग ये अलग अलग साइज का शिप है। तो सबसे पहले स्थूल चूर्ण को इस मोटे वाले शिप से पास करेंगे, देन मीडियम वाले से पास करेंगे और लास्ट में फाइन पाउडर शिप से पास करेंगे। तो इसकी भी क्षमता पर आवर फाइन पाउडर जो है नियर अबाउट 30 kg पर आवर इसका कैपेसिटी है फाइन पाउडर करने की। इसका ये ओपनिंग है। यहाँ से ड्रग हम यूज़ करते हैं और यहाँ से जितना ड्रग पे हार्डनेस पे निर्भर है, सॉफ्ट ड्रग है, हार्ड ड्रग है, उसके बाद इस तरह से हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कलेक्शन इस चैम्बर में होता है, इस चैम्बर से कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी 10 HP के मोटर से चलने वाला है। ये दोनों एक ही सेट में रखा गया है, मोटर एक ही है। जब ज़रूरत पड़े आप फैन बेल्ट चेंज करके उसका यूज़ सेम टाइम में नहीं 1 by 1 करके कर सकते हैं। ये हमारा संधान सेक्शन है। खास करके आयुर्वेद में पंचविध कषाय कल्पना का नाम तो आता है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, लेकिन उसकी सविरीता अवधि सद्य सेवन करने का। तो लॉन्ग टाइम के लिए आचार्यों ने टेक्निक डेवलप किया और उसका नाम संधान कल्पना। संधान कल्पना में हम द्रव्य को फर्मेंटेशन कराने के बाद 1 month फर्मेंटेशन कराते हैं। आफ्टर फर्मेंटेशन उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और ख़ास करके आशा वरिष्ठ जितना पुराना होगा उतना गुणकारिता के दृष्टिकोण से कारगर होगा। आशा वरिष्ठ में मेन इंग्रेडिएंट के रूप में अगर हम देखें तो द्रव, मधुर द्रव, फर्मेंटिंग एजेंट एंड प्रक्षेप द्रव्य के रूप में मात्र इंग्रेडिएंट यही है। अलग अलग आशा वरिष्ठ का नाम, चाहे वो बाष्कारिष्ट हो, चाहे अर्जुनारिष्ट हो, चाहे द्राक्षारिष्ट हो, उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट यही है द्रव, मधुर द्रव, प्रक्षेप द्रव और सुगंधित द्रव, फर्मेंटिंग एजेंट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 4-5 फैक्टर अपना अपना वर्क करता है कि सबसे पहले द्रव निर्माण, द्रव हम किस तरह से बनाएं। तो खास करके क्वाथ प्रिपरेशन हमारे यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट हम क्वाथ प्रिपरेशन करते हैं अरिष्ट के लिए, और आसव के लिए क्वाथ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बिना अग्नि संस्कार किए हुए स्वरस आदि डाल के जो फर्मेंटेशन कराते हैं उसे आसव कहते हैं, और आप अग्नि साध्य करने के बाद जिसमें हम फर्मेंटेशन कराते हैं उसे अरिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो जितना द्रव हम यूज कर रहे हैं, एक लाइन आया द्रव द्रोणे तुलाम गुरह, अगर द्रव 13 kg के नज़दीक का है, 12 point something आता है, तो उसमें 1 तुला गुर, 1 तुला मीन्स 4.8 kg या 5 शेर हम कर सकते हैं। तो मधुर द्रव 12 point something में 5 kg या 5 शेर मधुर द्रव्य का यूज करेंगे। अगर कहीं वर्णन है हनी का, तो गुड़ का हाफ, बेला का हाफ, मधु का, हनी का यूज किया जाएगा। और उसमें जो प्रक्षेप द्रव्य लिया गया है, गुड़ का 1/10 पार्ट प्रक्षेप द्रव्य का यूज किया जाएगा। मेन इसमें क्या है कि फर्स्ट है क्वाथ निर्माण, उसको कहेंगे द्रव। दूसरा है मिक्सिंग ऑफ स्वीटिंग एजेंट, गुड़ यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, शुगर कैंडी का यूज कर सकते हैं, अलग अलग मधुर द्रव्य आता है। इसके बाद उसमें आता है फर्मेंटिंग एजेंट। फर्मेंटिंग एजेंट में हम धात की पुष्प का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में बबूल त्वक का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में मधु पुष्प का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में किन्नु का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में
मॉडर्न में बैकरी ईस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका यूज करते हैं। इंग्लिश में दोनों को ईस्ट कहते हैं, किन्नु को भी ईस्ट करते हैं, बैकरी ईस्ट को भी ईस्ट करते हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ें। बैकरी ईस्ट जो है वो केमिकली बनाया जाता है, और हमारा आयुर्वेदिक किन्नु जो है कि फर्स्ट टाइम हम जो फर्मेंटेशन कराते हैं और प्रक्षेप द्रव जो बॉटम पार्ट पे सेटल डाउन हो गया, आफ्टर फिल्टरिंग उसे ड्राई करके हम बाद में यूज करते हैं, उसका नाम किन्नु है। तो अलग अलग रेशियो बताया गया है कि किन्नु का अगर हम यूज करेंगे, जो आयुर्वेदिक सेटल होने के बाद कलेक्ट करते हैं, तो 960 ग्राम फॉर 40 लीटर, 960 ग्राम फॉर 40 लीटर यूज करना पड़ेगा। अगर हम मॉडर्न किन्नु का यूज करेंगे, इसके नाम से जाना जाता है, तो 200 mg पर लीटर, 200 mg पर लीटर का यूज करेंगे। विदाउट किन्नु डाले हुए भी फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि उसमें आपने जैगरी का यूज किया है। जैगरी डालने के बाद फर्मेंटेशन इजी होगा, लेकिन फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेड मटेरियल अगर आप यूज करते हैं तो फर्मेंटेशन इजी होगा, जल्दी होगा। तो ये चार। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसा है कि किस जगह पे संधान करना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। भूमि तले, इन द पिट। दूसरा आया चुल्ली का आगार, जिस रूम में आप फायर का यूज करते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एक तीसरा आया अश्वशालागार, जहाँ पे आप हॉर्स को रखते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। या एक शब्द आया धान्य राशि, कि जो पात्र है उसके चारों ओर से किसी भी धान्य से हम उसे कवर कर देते हैं, तो धान्य में टेम्परेचर मिलता है। आप किसी भी चावल और बीट की गेहूं में अगर हाथ डाल के देखेंगे तो थोड़ा सा हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो मेंटेन के लिए हमारा पर्पस क्या है, हीट मेंटेन करने के लिए धान्य राशि हो, अश्वशालागार हो, या फिर चुल्लिकागार हो, या भूमि तले पीट करने का। आजकल थोड़ा टेक्निक डेवलप कर दिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डार्क रूम का यूज करते हैं। एक वैसा चेंबर जिसमें विंडो की व्यवस्था ना हो और उसमें जो टेम्परेचर आता है बहुत ज़्यादा रहता है। खास करके यहाँ यह ध्यान देना होगा कि फर्मेंटेशन के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए। तो एक अच्छी तरह से फर्मेंटेशन के लिए 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर हमें चाहिए। बिलो 25 डिग्री टेम्परेचर अगर है, फर्मेंटेशन होगा, स्लो फर्मेंटेशन होगा, लेट से होगा, तब तक आपके फंगस आने की ग्रोथ होने की संभावना हो जाएगी। अगर आप 35 से मोर देन 35, 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इतना फास्ट फर्मेंटेशन होगा कि जितना भी आपका आसब या अरिष्ट है वह शुक्र बन जाएगा, अम्ल रस में परिणत हो जाएगा। इसलिए एक टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड आसब अरिष्ट के लिए चाहिए। तो प्राचीन कालों में भूमि के नीचे का यूज किया जाता था, शलागार का यूज किया जाता था। आजकल ज़्यादातर फार्मेसी में डार्क रूम का प्रयोग करते हैं। हमारा ये फार्मेसी भी देख रहे हैं इस साइड से, इसका हाइट कम रखा गया है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। तो ये दूसरा आया कि हमारे आचार्यों ने बताया कि फर्मेंटेशन कितने दिनों में करना चाहिए। तो डिफरेंट प्रिपरेशन में आप देखेंगे तो अलग अलग फर्मेंटेशन का टाइम बताया गया। जैसे तक्कर अरिष्ट है, सबसे कम समय में 3 डेज में फर्मेंटेशन ओवर हो जाता है। गुगुला सब है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ में फर्मेंटेशन हो जाता है। लेकिन सारंगधर अगर हम देखें तो जनरली फर्मेंटेशन के लिए 1 मंथ का टाइम फिक्स किया है, 1 मंथ फर्मेंटेशन करने के लिए। तो यही टेक्निक है। अब इसके लिए किस तरह के पात्र में फर्मेंटेशन कराना चाहिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि इसके लिए पहले मड पॉट का यूज किया जाता था। मड पॉट अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है, लार्ज स्केल पे बड़ा साइज में मिलता नहीं है। इसके जगह वुडन ड्रम का यूज किया जाता है, इसके लिए मेटेलिक ड्रम का यूज किया जाता है। इसके जगह आज प्लास्टिक ड्रम का भी यूज किया जा रहा है। सुविधा अनुसार आप उसका यूज कर सकते हैं। हर पात्र में मेरिट एंड डिमेरिट होता है। खास करके आप अगर अर्थेन पॉट का यूज किए तो अर्थेन पॉट ज़्यादातर ब्रेक होने की संभावना होती है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। लेकिन जब फर्मेंटेशन का प्रेशर बढ़ेगा तो उससे वो धीरे धीरे लीकेज होना शुरू हो जाएगा, वो एरिया पूरा वेट हो जाता है। अगर आप मेटेलिक पॉट का बात करें तो मेटेलिक पॉट में कोई आम्लरस प्रधान द्रव्य अगर है तो उसका रिएक्शन होने की संभावना रहती है। वुडन ड्रम में अगर आप देखें
तो छोटे छोटे पीस से उसको राउंड शेप दिया जाता है। क्लीनिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद बाकी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। आज खास करके प्लास्टिक ड्रम का यूज करते हैं और सभी फार्मेसी में इसका लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है। तो इसको 3 स्टेप में बांट देते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ द्रव्य और मिक्सिंग ऑफ मधुर द्रव्य, देन पात्र में रखा। सेकेंड स्टेप में इसका बीच बीच में हम टेस्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं कि अब फर्मेंटेशन ओवर हुआ कि नहीं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्मेंटेशन स्टार्ट है? स्टार्टिंग में आफ्टर 2 डेज आप साउंड अगर कान लगा के उसे सुनेंगे तो उसमें पुट 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 साउंड आएगा, इट मीन्स फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद 5 to 10 डेज के अंदर अगर वहाँ कैंडल लेके जाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, उस समय फर्मेंटेशन पीक पे होता है। फर्मेंटेशन ऑफ होने के बाद अगर आप कैंडल ले जाएंगे तो कैंडल जलता रहेगा। अगर लाइम वाटर टेस्ट करेंगे, जब फर्मेंटेशन हो रहा है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की कलर हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आफ्टर फर्मेंटेशन उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि आफ्टर फर्मेंटेशन उसे फिल्टर करके रखें, और कुछ टेक्स्ट में इस तरह का वर्णन किया गया कि 1 ईयर अनडिस्टर्ब उसे फिल्टर के बाद रखना चाहिए। आप देखेंगे कि जिस समय फिल्टर करने के बाद उसका जो टेस्ट था, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, इस तरह से उसके कलर में चेंजिंग आएगी और स्वीटिंग एजेंट उसमें बढ़ता चला जाएगा, कलर भी डार्क होता चला जाएगा। इसलिए 1 ईयर फर्मेंटेशन करने का विधान आचार्यों ने बताया है। प्लास्टिक कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क रूम तो सही है, हमारे पास डार्क रूम है, स्टोर किया है आसा वरिष्ठ को, लेकिन अभी प्लास्टिक का बैन है, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते। सो ऐसे समय में प्लास्टिक में हम क्या स्टोर कर सकते हैं आसा वरिष्ठ को, कौन सा प्लास्टिक यूज़ करना है, ये थोड़ा फोकस कीजिए सर, लाइट डालिए इस पर। हमारे यहाँ बहुत सारे पात्रों का वर्णन किया गया है, लेकिन हर पात्र में मेरिट डिमेरिट होते हैं। अभी आपका प्रश्न था कौन सा प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करना है। इसके लिए एक शब्द आता है फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर का हम यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और ज़्यादातर वाइट कलर का उस पर करना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का रिएक्शन होने की संभावना कम रहती है। हमारे यहाँ मेटेलिक पात्र का भी वर्णन आया, स्वर्ण रजत पात्रे वा मृण्मये पिबा। सारस्वत अरिष्ट बनाया जाता था सोने के पात्र में, अभी वो सब अनुपलब्धता है। सारस्वत अरिष्ट बनाते समय एक गोल्ड का एक प्लेट डाल देते हैं अंदर में, और जिस समय फिल्टर करते हैं सबसे पहले प्लेट निकालते हैं। इसी तरह रजत पात्रे वा, अभी हर जगह प्लास्टिक ड्रम, अर्थेन पॉट, वुडन ड्रम लार्ज स्केल में यूज हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लार्ज स्केल पे बनाती है ज़्यादातर प्लास्टिक ड्रम का यूज करती है। कोई वैसा प्रिपरेशन जैसे कांजी हुआ, धान्याम्ल हुआ, ये सब इसमें पोर्सलिन पात्र का प्रयोग करते हैं, जार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें आम्ल रस होता है। आम्ल रस का अगर मेटेलिक पार्ट में करते हैं उसमें भी रिएक्शन होगा, इसके लिए स्टोन के बर्तन में कराया जाता है। आप ये जो संधान करते हैं ना सर, कितने वक्त में आप निकाल के, क्या हमारे लिए ये ज़रूरी है कभी कभी निकाल के देखना है, कब निकालना है, कब देखना है? अलग अलग आशा वरिष्ठ का अलग अलग टाइम रहता है, क्या है सर वो? मैं पहले बताया हमारे यहाँ 3 डेज का भी रेफरेंस है तक्रारिष्ट, 6 मंथ का भी रेफरेंस है गुगुला सब, लेकिन सारंगधर ने मास पर्यंत शब्द का प्रयोग किया 1 मंथ। 1 मंथ आप देख रहे हैं, जिस समय आप स्वीटिंग एजेंट अंदर में डालेंगे, डालने के बाद जो आप प्रक्षेप द्रव्य का प्रयोग करेंगे, उस समय प्रक्षेप द्रव्य ऊपर फ्लोटिंग अवस्था में रहता है। उसके बाद हम इसको 2 दिन तक कपड़े से कवर करके रखते हैं। आफ्टर 2 डेज इसके नज़दीक अगर आप एयर ले जाइएगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। नीचे अब अगर आप देखेंगे बबल्स आते रहेगा, इट मीन्स स्टार्ट हो गया है फर्मेंटेशन। इमीडिएट इसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं और यहाँ से मड एंड क्लॉथ का कपर मिट्टी करके अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। 1 मंथ का सर यहाँ पर वही प्रोसीजर किया है जो संदीप का कंसीडर किया गया है। टेक ए क्लोज शॉट हियर से। हाँ सर, ये थोड़ा हार्ड होगा, इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, इस पेस्ट में क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। तो गोमे और मड दोनों को कंबाइंड करके पेस्ट बना के इस पर लेपन किया जाता है, क्रैक्स नहीं आता है। आफ्टर 2 डेज थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा तब करते हैं। तो फर्मेंटेशन के बाद
आफ्टर 15 डेज इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, तो उस समय साउंड का क्या पोजीशन है, कैंडल टेस्ट है उस समय करते हैं। अगर फर्मेंटेशन चल रहा है अगेन उसको कवर करके रख दिया जाता है और फिर 1 मंथ पर्यंत फर्मेंटेशन जो है 8 से 15 डेज के अंदर पीक पॉइंट पे होके शांत हो जाती है। कभी कभी इसमें क्लाइमेट का भी इफेक्ट होता है। अगर शीत ऋतु में आप कर रहे हैं तो डबल टाइम चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं तो प्रायः 8 to 15 मिनट में 15 डेज में हो जाता है, लेकिन शीतकाल में अगर आप कर रहे हैं तो 10 to 25 डेज के नियर अबाउट लगता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा 1 मंथ पर्यंत रखें। सर ये आसावरिष्ट प्रिपेयर करना हो या क्वाथ कुछ भी तेल प्रिपेयर करना हो, रॉ मटेरियल्स क्या हमें सभी कुप्पा में मिलता है या आपको क्या तकलीफ़ है और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? और ड्रग्स और रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने में कौन सा नहीं मिलता है, कौन सा मिलता है, ईजिली अवेलेबल है, उसके लिए क्या इंतज़ाम है सर? खास करके हर ड्रग हर एरिया में नहीं आता है। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो हिमालय रीजन बताया गया है, कुछ ड्रग ऐसे हैं जो विंध्याचल पर्वत के नज़दीक, मीन्स शीत वीर्य वाली औषधि जो है हिमालय के नज़दीक से कलेक्शन होना चाहिए और उष्ण वीर्य वाली जो है विंध्याचल पर्वत से कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट में रेफरेंस है। लेकिन हम लोग टेक्स्ट में रेफरेंस है प्रशस्त देशे संजातम प्रशस्त हानि चोदितम, कि जो भूमि हो वो प्रशस्त देश में उत्पन्न ड्रग कलेक्शन करना चाहिए। लेकिन कंक्लूड करते समय हम लोग ये देखेंगे, हम लोग मार्केट पे डिपेंड करता है। बड़े बड़े मार्केट हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, वहाँ क्या है हर जगह से ड्रग जहाँ से कल्टीवेट होता हो वहाँ से कलेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो हम लोग रॉ मटेरियल के लिए बॉम्बे मार्केट से परचेज करते हैं। बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो फ्रेश यूज़ करना चाहिए, जैसे कुष्मांड है फ्रेश यूज़ करना चाहिए, शतावरी है फ्रेश यूज़ करना चाहिए, क्या कहते हैं गुरुचि है फ्रेश यूज करना चाहिए। तो ऐसे द्रव्यों की व्यवस्था लोकल मार्केट में होती है, लेकिन लार्ज स्केल पे है हम लोग बॉम्बे दिल्ली से कलेक्ट करके लाते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और लार्ज स्केल में आप जितना सप्लाई लेना चाहें वहाँ मिल जाएगी। और हम अभी आसावरिष्ट के संदान प्लेस में डार्क रूम में है, हमारे फार्मेसी के डार्क रूम में कितने आसावरिष्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं सर? कितने वैरायटीज़ के हम प्रिपेयर करते हैं और क्या कोई स्पेशल ऐसा आसावरिष्ट हम प्रिपेयर करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है? जैसे हम लोग यहाँ लगभग 18 टाइप्स के आसावरिष्ट बनाते हैं। गोमूत्र सब भी बनाना शुरू किया हूँ, वो मार्केट में सभी कंपनी नहीं बनाती। गोमूत्र सब हमारा यहाँ हॉस्पिटल के लिए सप्लाई होता है। बाद बाकी द्राक्षारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, कनका सब ये प्रायः सभी कंपनी बनाते हैं, हमारी कंपनी भी बनाती है। गोमूत्र सब कोई नहीं बनाता है, हमारा यहाँ बनाया जाता है स्पेशली। ये हमारा बटी सेक्शन है। खास करके आयुर्वेद में बहुत सारे बटी का यूज़ किया गया है। अब चूर्ण का जो सेल्फ लाइफ है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ओनली 2 मंथ बताया गया। तर्क दिया गया कि अगर गुड कंटेनर का यूज़ हो या टाइट कंटेनर का यूज़ हो तो 6 मंथ तक उसमें कोई प्रकार, लेकिन गुण कर्मता के दृष्टिकोण से हीन वीर्य धीरे धीरे होता है। तो बटी कल्पना में खास करके ड्रग्स बाइंडिंग एजेंट का यूज किया जाता है और उसको फिर हम 2 प्रकार का बटी कहा गया।
एक अग्निपाक के द्वारा बनाया जाता है और दूसरा भावना मेथड से बनाया जाता है। भावना मेथड है जो ड्रग डाला और उसमें जो लिक्विड मेंशन किया गया है उसके साथ रब्ड करके जब पेस्ट बन जाए तो हम उसको भावना मेथड कहेंगे। लेकिन एक ऐसा भी मेथड है कि अग्नि के ऊपर उसको पाक करके सभी ड्रग मिक्स करते हैं और बाद में उसको पिल्स बनाते हैं, तो अग्नि सिद्ध और अनग्नि सिद्ध 2 प्रकार के बटी का नाम आता है। इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपका पाउडर जितना फाइन होगा बटी उतना ही स्मूथ होगा। फाइन पाउडर अगर नहीं हुआ, रफ हुआ, बटी भी रफ होगा। तो खास करके पेस्ट बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्टिक मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टिक मेकिंग इंस्ट्रूमेंट इस तरह से हम इसको जो पेस्ट बनता है वो खास करके ना हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो स्टिक को पास करेगा और कटिंग प्रॉपर नहीं होगी। बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो वो लिक्विड बन के निकल जाएगा, उसका भी कटिंग नहीं होगा। तो बिल्कुल हार्ड और सॉफ्ट के बीच का इस तरह से हम इसमें पेस्ट फिल करते हैं और जो डाई चाहिए हमें, जिस साइज़ का चाहिए उसको डाई को इसमें फिक्स कर किया गया। अब इसमें जब पेस्ट आप फिल करेंगे, हाँ, इसमें पेस्ट फिल करने के बाद यहाँ से हम लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद इसको हो जाएगा लॉक। अब इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, तो पेस्ट को धीरे से ये प्रेशर करके आगे की ओर आएगा। आगे, हाँ, आगे 3 लगा हुआ है, यहाँ से पेस्ट स्टिक के रूप में यहाँ तक आएगा। ये जो लंबाई है इसका लंबाई दोनों सेम है। तो इसकी जब स्टिक आ गया इस पर, इसको एक पात्र में कलेक्ट कर लेते हैं और उस स्टिक को इसके ऊपर रख के इसको मूव कर देते हैं, तो कट भी हो जाएगा और राउंड शेप भी सेम टाइम में हो जाता है। तो इसका नाम पिल्स कटिंग, इसका नाम स्टिक मेकिंग मशीन। जब ये पिल्स कटिंग हो गया तो देखने में बहुत ही रफ होगा और जो पार्ट कट हुआ है वो थोड़ा सा पिट बन जाता है वहाँ पे। तो इसको कम से कम 2 डेज ड्राई करने के बाद हम लास्ट में पॉलिशिंग करते हैं। उसके लिए पॉलिशिंग करने के बाद उसका शेप, शाइनिंग इस तरह से बढ़ जाता है। This is prepared Yogaraja Kukudu from our pharmacy under the guidance of Krishna sir. This is the Mokshuradi Kukudu. The pills here. And again Yogaraja Kukudu. So you can see. सर, अब अभी पिल्स के बारे में बताइए, टैबलेट्स के बारे में। ये हैंडमेड पिल्स और मशीन मेड पिल्स में आप इतना शास्त्र को मानने वाले हैं, सीनियर प्रोफेसर है, आपका इतना एक्सपीरियंस है। सर, आप क्या टेक्नोलॉजी वर्सेस हैंडमेड पिल्स में विश्वास करते हैं? है तो क्या डिफरेंस है? कौन सा श्रेष्ठ है यूज़ करने में? आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। जहाँ हम स्मॉल स्केल पे बनावे, हैंडमेड भी बनाया जा सकता है, लेकिन वेरिएशन थोड़ा सा डोजेज में आ जाता है कि जब आप एवरेज वैल्यू उसका निकालेंगे तो कोई पिल्स 500 mg का हो जाएगा, कोई पिल्स 400 mg का हो जाएगा, कोई पिल्स 3+ हो जाएगा। अगर आप 2-3 वर्कर्स के द्वारा बना रहे हैं तो अलग अलग वर्कर से बनाने वाला पिल्स का साइज में वेरिएशन आ जाता है। हमारा एक उद्देश्य है एक्यूरेसी ऑफ डोसेज, एक डोज की एक रूपता हो, उसके लिए। दूसरी बात क्या है, मैनुअल से मशीनरी का आप यूज करते हो तो वर्क ज़्यादा होता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है, डोज सबका सेम हो जाता है। इसलिए मैनुअल भी किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं कि उसका जो कट करते समय जो लोग लेंगे उसके डोज में ज़्यादा भिन्नता नहीं मिलेगी। मशीन में भी 50 mg और 100 mg का कभी कभी वेरिएशन होता है, लेकिन इससे वर्क 1 आवर में कम से कम 6 kg टैबलेट इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, जबकि पूरे वर्कर एक दिन भर में 6 kg करेगा। यही भिन्नता है। हम उसी चीज़ को मैनुअल भी कर सकते हैं और मशीनरी से थोड़ा वर्क ज़्यादा होता है। डोसेज सबका टैबलेट का साइज सेम होता है। अब हमारे यहाँ mg और जो बताया गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है,
में मेजर किया जाता है कोई भी टैबलेट के साइज़ को हम देखते हैं और उसको इस तरह से स्केल पे यूज करते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको एक्यूरेट करके 8 mm, 6 mm, 4 mm का टैबलेट बनाया जाता है। अब उसमें ड्रग पे निर्भर करता है। प्योर अगर हर्बल ड्रग है तो 8 mm भी होगा तो वेट उसका कम होगा, क्योंकि प्योर हर्बल ड्रग है। आपने उसमें गुगलू ऐड किया, भस्म ऐड किया, छोटा टैबलेट का भी वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि भस्म का प्रयोग किया गया है, गुगलू का प्रयोग किया गया है। तो प्योर हर्बल ड्रग होगा, उसके साइज बड़ा भी होगा, वेट कम होगा। और अगर आप मिनरल का यूज़ किया है तो साइज छोटा भी होगा, वेट उसका ज़्यादा होगा। और एक छोटा सा सवाल है सर, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है प्रैक्टिशनर्स को, वटी गुटिका गुलिका इन लोगों में कुछ डिफरेंस है या एक ही है? क्या है इनका मीनिंग, क्या है इनका, डिफरेंशिएशन है कि नहीं, वो सेम है, क्या है सर? बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि कहीं पर वटी लिखा है, कहीं पर गुलिका लिखा है, गुटिका लिखा है। सो क्या डिफरेंस है सर इसमें? एक्चुअल ये सिनोनिम है, बटी, गुटिका, मोदक। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो बटी जो है स्मॉलर साइज का टैबलेट को कहा जाता है, मोदक जो है बिग साइज के टैबलेट को कहा जाता है। बर्ती जो है, अगर टैबलेट का साइज लंबा गोल अगर आप बना दिए तो उसका नाम बर्ती के नाम से जाना जाता है। तो मोदक का डोज जो होगा 1 तोला टू 50 ग्राम, 1 तोला टू 50 ग्राम का बताया गया है। जनरली 1 तोला से ऊपर का होता है। तो साइज उसका चूँकि मोदक के समान होता है, इसलिए उसको मोदक के नाम से कहा गया। सेम चीज़ बटी गुटिका सब सेम है, सिनोनिम का प्रयोग किया गया है। बर्ती जो है वो लंबा बनाया जाता है और ख़ास करके उसे मिल्क या हनी में रख के घिस के और लगाने के लिए यूज किया जाता है कहीं भी, तो इसलिए उसका नाम बर्ती है। अगर उसी चीज़ को हम फ्लैट कर देते हैं तो मॉडर्न में उसका नाम टैबलेट है। राउंड है तो पिल्स है, टैबलेट है, मटेरियल वही है। उसको फ्लैट कर दिया तो टैबलेट के नाम से जाना जाता है, राउंड कर दिया तो पिल्स के नाम से जाना जाता है, बिग साइज है तो मोदक के नाम से जाना जाता है, लंबा साइज है तो बर्ती के नाम से जाना जाता है। और टेक्स्ट में ये सभी नाम बटी के सिनोनिम के रूप में प्रयोग किया गया है। थैंक यू सर। ये स्टूडेंट्स को, जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग पूछते रहते हैं क्या है इसका डिफरेंस में। एक्चुअली आप जैसे एक्सपर्ट इसको इतना क्लैरिफिकेशन के साथ अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वटी गुटी वटिका, आपने ये भी वर्ती भी बताया, टैबलेट और पिल्स के डिफ्रेंसिएशन भी बताया। थैंक यू सो मच सर। जब हम टैबलेट बनाते हैं और 2 डेज ड्राई होने के बाद टैबलेट को हम नीचे गिरा के देखते हैं, फूटना नहीं चाहिए, उसके शेप में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई हुआ तो 8 to 10 kg इसमें डाला जाता है। इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। अब ये जो देख रहे हैं आप, एयर सप्लाई करने का है, ये एयर पाइप है। यहाँ से हम एयर सप्लाई देख रहे हैं। छूइए, टच कीजिए नीचे। और ये जो आप देख रहे हैं स्विच, ये हीटर है। अगर हीटर ऑन कर देते हैं तो इससे हॉट एयर आना शुरू हो जाता है। अगर वहाँ रेंज बढ़ा देते हैं तो इससे फ्लेम भी आएगा। अभी कोल्ड एयर आ रहा है। हाँ, इसको अगर इसको ऑन कर देंगे तो फ्यू मिनट के बाद आप हाथ नहीं रख सकते। ओके। इतना हॉट हो जाएगा और हॉट होगा। ये ड्राइंग प्रोसेस में दोनों चीज़ होता है, ड्राइंग भी करता है। इसमें जब हम टैबलेट रखते हैं 8 to 10 kg, और इसमें लिक्विड अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ किया जाता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिस मटेरियल का टैबलेट बनाया उसी का पेस्ट थोड़ा सा रख लेते हैं और उसको हॉट वाटर में बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड करने के बाद फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद अगेन उसको बॉइल करते हैं और उसका कंसिस्टेंसी हनी के जैसा, जस्ट लाइक हनी के जैसा उसका थिकनेस आ गया तो लिटिल बाय लिटिल इसको 8 किलो और 10 किलो जो टैबलेट है उसके ऊपर लिटिल बाय लिटिल ऐड करते हैं और कंटिन्यू चलता है। एक दूसरे से रब होने के कारण उसका ऊपर का सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है। और ऊपर से जो लिक्विड यूज करते हैं उसके जो कटिंग वाला हिस्सा जहाँ पिट बन जाता है वो फीलिंग हो जाता है और हॉट एयर के थ्रू ड्राइंग का काम भी चलते रहता है। तो सेम टाइम में हॉट एयर का भी यूज़ करते हैं। अगर हमें शुगर कोटिंग करना है तो शुगर को हम पहले क्या करते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं।
आपको ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर जो भी चाहिए उसमें कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और जिस समय टैबलेट बना रहे हैं उस समय हीटर ऑन करके उसमें लिटिल बाय लिटिल छिड़केंगे, तो उसमें क्या होगा, हॉट के कारण मेल्ट होगा शुगर और एक दूसरे से कोटिंग का काम करेगा। तो शुगर कोटिंग हमारे यहाँ तक ज़्यादातर बाइंडिंग एजेंट के रूप में गुगलू का यूज़ होता है और एज ए ड्रग के रूप में भी गुगलू का यूज़ होता है। अगर बहुत अल्प प्रमाण में गुगलू का यूज हुआ है तो एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज होता है, एज ए शुगर भी बाइंडिंग एजेंट यूज होता है, एज ए गुड़ भी बाइंडिंग एजेंट यूज होता है, या जो भावना द्रव्य है कुमारी सोरस है या अदर सोरस है, एज ए बाइंडिंग ड्रग के रूप में भी यूज होता है। तो हम इससे ज़्यादातर हमारा गुगलू में गुगलू का ही यूज़ करते हैं। सेम प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्टॉक में रिजर्व रखा, उसे हॉट वाटर में बॉयल किया, फिल्टर किया, अगेन उसको कंसिस्टेंसी हनी के जैसा बनाया और लिटिल बाय लिटिल यूज़ किया। आफ्टर कोटिंग उसका शेप आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा चेंजेज हो जाता है। ये सर, ये खास करके पल्वराइजर, ये क्या कहते हैं, ग्राइंडर है। जब आप कोई भावना द्रव्य देते हैं, भावना द्रव्य देने के लिए मैनुअल आप कितना भावना देंगे, लार्ज स्केल पे है तो मैनुअल संभव नहीं है। इसमें कम से कम 10 kg तक का आप दे सकते हैं और इलेक्ट्रिकल चलता है रोटेशन में। जब तक अच्छी तरह से पेस्ट न बने तब तक हम कंटिन्यू भावना देते हैं। तो टैबलेट बनाने से पहले पेस्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाद हम ड्राई करते हैं टैबलेट को, तो ड्राई करने के लिए ये ड्रायर का यूज़ किया जाता है। ये 24 ट्रे का ड्रायर है। इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप ज़्यादा देते हैं तो जो पार्ट टच में आता है वो पार्ट बर्न हो जाता है, उसके एक्टिंग पार्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। इसके दोनों साइड हीटर लगा हुआ है और एयर लगा हुआ है। तो दोनों साइड जो हीटर है उसके कारण हीट प्रोड्यूस करता है और एयर भी है, और यहाँ से निकलने का मार्ग, जो हॉट एयर होगा यहाँ से रिमूव होगा। इस तरह से इसको ड्राई करने के लिए कोई भी ड्रग अगर चूर्ण बनाना है तो उसे भी ड्राई करना ही पड़ता है। अगर अच्छी तरह से आप ड्राई नहीं किए तो प्रॉपर पाउडर नहीं होगा, इसलिए इसको ड्राई करना पड़ता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में खास करके 2 प्रकार का ड्रग का यूज करते हैं, एक वेट ड्रग, दूसरा ड्राई ड्रग। तो कोई भी फार्मेसी के लिए चाहिए कि ड्रग के लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। सेपरेट एरिया 2 तरह से हम देखेंगे कि जो फर्श का हाइट से कम ड्रग रखने का हाइट 4 अंगुल 5 अंगुल हाइट ऊंचा करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर कर देने से नीचे का कोई ऐसा एरिया है जो आद्र एरिया है तो उसके ऊपर ड्रग का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ड्रग स्टोर के लिए 3 रूम का होना जरूरी है। नंबर 1 स्टोर ऑफ फ्रेश ड्रग, स्टोर ऑफ प्रोसेस्ड ड्रग, स्टोर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ड्रग। 3 स्टेप में आपको ड्रग का चाहिए। तो ड्रग के लिए एक सेपरेट ड्रग्स को सेपरेट पात्र में रखें। आप बहुत सारे ड्रग में आपको कन्फ्यूजन होगा ये कौन सा ड्रग है, तो विदाउट लेबलिंग कोई भी ड्रग का यूज न करना चाहिए। हर पात्र में आपका लेबल होना चाहिए। हर पात्र में, अब ये देख रहे हैं ये बमसुलोचन का यूज किया गया है, तो बमसुलोचन का नेम होना चाहिए, सेपरेट कंटेनर में होना चाहिए कोई भी ड्रग, और जितना आप यूज़ किया है और स्टोर में कितना है वो रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अगर आपने 10 किलो आज यूज़ किया और आपके स्टॉक में 100 किलो था तो रजिस्टर में भी 90 किलो होना चाहिए और स्टॉक में भी 90 किलो होना चाहिए। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। तो सभी ड्रग देख रहे हैं, ये पिपली है, इसी तरह बहुत सारे ड्रग्स को कलेक्ट किया गया है। सभी ड्रग्स का सेपरेट लेबलिंग किया गया है। उधर मिनरल्स भी ड्रग्स के अंतर्गत आता है। 2 प्रकार के ड्रग्स हैं,
एक हर्बल ड्रग्स, दूसरा मिनरल ड्रग्स, और ये दोनों से जो प्रिपरेशन बनने वाला है उसको हर्बो मिनरल के नाम से जाना जाता है। अभी आप सल्फर देख रहे हैं, हाँ सर, इसका कॉस्ट 50 रुपीज़ पर केजी है, गंधक, हाँ। लेकिन बिफोर शोधन, आफ्टर शोधन इसका कॉस्ट 1200 रुपीज़ केजी होगा, क्योंकि उसमें आप घी का यूज करते हैं, दूध का यूज करते हैं। ड्यू टू कॉस्ट ऑफ घृत एंड मिल्क इसका कॉस्ट मोर देन 1200 पर केजी हो जाएगा। रॉ से ज़्यादा, रॉ 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ का है। दो चीज़ बताया गंधक में कि इक्वल प्रमाण में घी का यूज करना चाहिए। गंध तुल्यंग, गंधक का इक्वल, रस्तरंगनी ने बताया। तो 50 रुपीज़ का आपका सल्फर है, लेकिन 1 किलो घी का अभी कॉस्ट 500 रुपीज़ है। अब उसको प्रॉपर डालने के लिए मिल्क चाहिए, मेल्टिंग एंड पावरिंग इन मिल्क। तो मिल्क कम से कम आप 10 लीटर लिए तो 10 लीटर का कॉस्ट जोड़ लीजिए, उसका कॉस्ट ये हो जाता है, प्लस अदर एक्सपेंस, गैस है, लेबर है, ये है, वो है, तो मिनिमम 1200 रुपीज़ से कॉस्ट उसका ज़्यादा जाता है। सेम ड्रग को अगर आप आफ्टर शोधन गंधक रसायन बनाए, उसमें 88 भावना देने का विधान है, 8 भावना ईच ड्रग्स, तो उसमें कम से कम पर डे अगर 5 और 6 भावना भी दिया तो 88 भावना देने में 1 वीक लग जाता है। उसका कॉस्ट 5000 रुपीज़ आएगा। अगर उससे कम में कोई सप्लाई देता है तो उसमें डाउट होता है। हाँ, लेबर कॉस्ट आप जोड़ोगे ना। सही बात। गंधक रसायन एक स्नेह कल्पना, खास करके अलग अलग तेल पाक विधि का वर्णन किया गया है। तेल जो है ड्यू टू सूक्ष्मत्व गुण होने के कारण बॉडी में इजी स्किन मार्ग से इंटर कर जाता है। स्नेह कल्पना में ड्यू टू सूक्ष्मत्व गुण होने के कारण इजी स्किन के अंदर निकल जाता है। आप जितना भी स्नेह में घृत, तैल, वर्षा एंड मज्जा का नाम होता है। हमारा जहाँ टैबलेट वर्क नहीं करेगा, ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ पे हमारा घृत कल्पना जो है स्नेह है वो ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस किया जाता है। इसलिए ऊर्ध्वांग में ज़्यादातर घृत का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले स्नेह में स्नेह उसका 4 टाइम द्रव का यूज करते हैं। 1 पार्ट स्नेह, 4 टाइम द्रव क्या है? स्वरस हो सकता है, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, डिकॉक्शन हो सकता है, और कल्क 1/4 पार्ट। स्नेह का 1/4 पार्ट कल्क और स्नेह का 4 टाइम द्रव डिकॉक्शन हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है। अब इसको प्रॉपर पाक करने के विधान बताया कि जहां आप स्वरस का यूज कर सकते हो वहाँ पे प्रॉपर पाक के लिए उतना वाटर भी ऐड करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा हीट पाने के बाद स्वरस जो है वो थिक हो जाएगा और बर्निंग स्मेल आने लगेगी। इसलिए प्रॉपर पाक के लिए सम्यक पाकार्थ उतना ही इक्वल प्रमाण में वाटर का भी यूज किया जाता है। तो जो पाक लक्षण हम देखते हैं तो 2 लक्षण मिलेगा। अगर तेल पाक करते हो तो सबसे पहले क्या आएगा? फेनोदगम, फोम उत्पन्न होने लगता है, फोम बनने लगता है। इट मीन्स पाक के नज़दीक हम पहुंच गए, अब कुछ क्षणों में ही पाक होने वाला है। उसमें 2-3 प्रकार का पाक अपने यहाँ बताया, मृदु पाक, मध्य पाक एंड खार पाक। मृदु पाक में क्या देखेंगे कि स्नेह में अगर आप बर्ती डालेंगे और उसको बर्न करेंगे तो विदाउट साउंड वो जलेगा दीपक की तरह। लेकिन कल्क में अगर आप एक पेपर पर रख के उसको हीट किया
तो उससे पट चट चट आएगा साउंड। इट मीन्स वाटरी कंटेंट कल्क में है। अगर स्मॉल अमाउंट में है और वैसी कंडीशन में अगर आप पाक करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उससे बनने वाला पाक कहलाएगा मृदु पाक। मृदु पाक ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए और उसका प्रयोग नस्य कर्म के लिए, ओनली फॉर नस्य कर्म। जहाँ नस्य कर्म होगा अणु तेल, कहाँ करेंगे? नस्य का प्रयोग। पाक कौन सा होगा? मृदु पाक होगा। दूसरा आता है मध्यम पाक। उसमें आप ऑयल में भी अगर आप बर्ती डालेंगे तो प्रॉपर जलेगा। कल्क को भी अगर अग्नि के ऊपर ले जाएंगे विदाउट साउंड, वो भी जलेगा। साउंड मतलब कल्क में भी नहीं होगा और तेल में भी नहीं होगा। आप इमीडिएटली दूसरा कल्क को अगर आप बर्ती बनाना चाहेंगे 2 फिंगर के बीच में, तो बर्ती इजी बनेगा। तो इस तरह से आप अगर इमीडिएट फिल्टर करते हैं तो वो बनने वाला तेल जो है मध्यम पाक होगा। और मध्यम पाक का यूज जो है सर्व प्रयोग, एक्सटर्नली इंटरनली हर जगह उसका प्रयोग करते हैं। खड़ पाक, आप पाक करते करते ज़्यादा कर दिया, अगर आप तेल में बर्ती डालेंगे उसमें भी साउंड नहीं आएगा। कल्क को अगर आप डालेंगे अग्नि पे उसमें भी साउंड नहीं आएगा। लेकिन कल्क को अगर आप बर्ती बनाना चाहेंगे तो चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तेल का पाक ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी तेल पाक का सविधता अवधि बताया 1 ईयर 16 मंथ, 1 ईयर 16 मंथ बताया गया है। उस हिसाब से हमारे आचार्यों ने हर तेल का एक सविधता अवधि बताया है, 1 ईयर 16 मंथ। अब तेल का जो देखोगे सभी तेल का इंटरनल यूज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे तेल ऐसे हैं उसमें उसका इंटरनल यूज भी होता है, डोज भी उसका बताया गया है। तो जो कल्क जब हम फिल्टर करते हैं उस समय कल्क बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आप हाथ से टच नहीं कर सकते। तो इसे कल्क को इसमें रखा, इसमें फिल किया और इस तरह से हम अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से प्रेस होकर यहाँ से जितना भी तेल है वो निकल जाएगा। अगर आप 40 लीटर का लॉट कर रहे हैं और कल्क से तेल नहीं निकालिएगा तो लगभग 2 किलो 3 किलो तेल का आपको कल्क में रह जाएगा। अगर प्रेस करके आप निकाल लेते हैं तो 2 kg और 3 kg तेल आ गया तो 3000 का वो हो जाएगा। इसलिए उसका एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कल्क निष्पीडन यंत्र। क्योंकि बहुत गर्म है ना, वैसे समय हम आप तुरंत इमीडिएटली हाथ नहीं लगा सकते। घी है कि अगर कोल्ड होने पे वो थिक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उससे लॉस होगा। इसलिए इमीडिएटली गर्म अवस्था में ही इससे निकाला जाता है। ये जो देख रहे हैं सर, ये एक चुल्ली का है, खास करके अवले है का हम यूज यहाँ पे करते हैं। ये उसका अग्नि लगाने का चेम्बर है और यहाँ से उसका इस तरह से पार्ट फिक्स हुआ। अब जैसे च्यवनप्राश है अगर हम बना रहे हैं तो च्यवनप्राश में लगभग 49 ड्रग का उल्लेख किया गया है। उसका हम डिकॉक्शन बनाते हैं। डिकॉक्शन बनाने के बाद उसमें 500 नल्लिकाई आमलकी काउंट करके, तो मार्केट में 2 प्रकार का आमलकी आता है। जो बना आमलकी है उसका साइज छोटा होगा और वाटरी कंटेंट उसमें कम होगा। अब ये हाइब्रिड का आमलकी है, उसका साइज बड़ा बड़ा होगा, वाटरी कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो अपने यहाँ बताया गया छोटा साइज वाला आमलकी का प्रयोग करना चाहिए और 500 नग 500 पीस का प्रयोग किया गया। ये लगभग 500 पीस लगभग 5 kg के आसपास आ जाता है। 10-20 ग्राम का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वहीं अगर आप हाइब्रिड वाला लेंगे तो 500 पीस लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए स्वीटिंग एजेंट में चेंजिंग करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ड्रग खाने के लायक नहीं होगा। तो इसमें जब हम डिकॉक्शन बनाया, अब डिकॉक्शन में एक पोटली बना के नल्लिकाई को आमलकी को रखते हैं और हीट करते हैं। आमलकी जब पूरा ऐसे दबाने से पेस्ट बनने लगे तो वैसे कंडीशन में उसको उससे रिमूव करते हैं और सबसे पहले सबका सीड निकालते हैं। सीड निकालने के बाद उस पर पेस्ट करते हैं। आमलकी भी बताया कि सुपक को आमलकी का प्रयोग करना चाहिए। सुपक को मीन्स उसमें फाइब्रस पार्ट ग्रोथ हो जाता है, उसका कलर घृत वर्ण का हो जाता है और ये लगभग दिसंबर महीना के आसपास में आपको इस तरह का आमलकी मिलेगा। तो सुपक को मीन्स पूरा मैच्योर होने के बाद
गुण कर्म के दृष्टिकोण से भी पूरा गुण कर्म वाला हो जाता है। प्री मैच्योर अवस्था में पूरा गुण कर्म नहीं आता है। समय समय पर द्रव्यों में भी चेंजिंग होते रहता है। एक मैंगो है, अगर छोटा आप लिए उस समय उसमें कसाय रस है, आप टेस्ट करेंगे कसाय रस, वो मैंगो थोड़ा बड़ा होता है आम्ल रस, वही मैंगो आफ्टर एपल मधुर रस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैच्योरिटी का अपना रोल है। कोई भी मैच्योर ड्रग का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ भी फाइब्रस पार्ट को रिमूव करने के लिए पेस्ट बनाने के बाद, जैसे आपका मॉस्किटो नेट होता है उस तरह का कपड़े के ऊपर रख के रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, जो फाइब्रस पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, ओनली कल का पेस्ट वाला हिस्सा नीचे आता है। अब उसको घृत में फ्राई किया जाता है। तो फ्राई करने के लिए इस चुल्लिका का यूज़ किया जाता है कि घृत में फ्राई करते हैं। और फ्राई करते करते पहले स्टार्टिंग में जब देखेंगे घृत दिखेगा ही नहीं उसमें मिक्स करने के बाद, लेकिन 2 आवर 3 आवर के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा कि घृत दिखना शुरू होगा। उस समय कल्क को अगर एक बार आप आगे की ओर धक्का दोगे तो पूरे का पूरे कल्क मूव करेगा। धीरे धीरे घृत छोड़ना बंद हो जाता है। वैसी अवस्था में उसको निकाल के और फिर शुगर पाक करते हैं। शुगर पाक करने के बाद उसको पाक कर किया जाता है और लास्ट में स्वांगशित होने के बाद हनी ऐड किया जाता है और उसी से पहले प्रक्षेप द्रव्य ऐड करके रखते हैं। तो ये अवलेह कल्पना के लिए चुल्लिका का यूज़ किया। अभी बताया था स्नेह के लिए, तो स्नेह पाक के लिए अभी डिकॉक्शन तैयार हो रहा है। महानारायण तेल के लिए डिकॉक्शन तैयार हो रहा है। डिकॉक्शन तैयार होने के बाद उधर आगे इसमें जो हीट दिया जाएगा तो इसका अलग से पीछे से लकड़ी लगाने का व्यवस्था है और फ्यूम जो है पाइप होकर बाहर निकल जाता है। रूम में फ्यूम नहीं आएगा। जब ये स्केल से हम मेजरमेंट करेंगे 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पात्र लगा के और उसको इस तरह से मूव कर देने से पूरे का पूरे कलेक्ट हो जाएगा और जो कल्क का पार्ट होगा उसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे। फिर उसको हम तेल पाक के लिए यूज करेंगे डिकॉक्शन। ये अभी महानारायण तेल बन रहा है ना सर, इसमें कितना तेल बन सकता है सर? ओवरऑल कितना मैन्युफैक्चर करते हैं? ये 60 लीटर का एक बैच बनाया जाता है। तो 60 लीटर में हम ये क्वाथ डालेंगे और फिर मिल्क डालेंगे और दोनों में पाक किया जाएगा। पाक करने के बाद इसको बनाने में 5-6 दिन लग जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बताया क्षीरे द्विरात्रो स्वर से तिरात्रो तक्र डाले सुपंचरात्रो। अगर क्षीर का यूज़ किया है तो 2 डेज में पाक करना चाहिए। स्वरस का यूज़ किया है तो 3 डेज में पाक करना चाहिए। टक्र, आर्नाल, कर्ड, कांजी ये सब का यूज़ किया है तो पंचरात्र में यूज़ करना चाहिए। बल्ली मूल का यूज़ किया है तो 12 डेज में यूज़ करना चाहिए और मांस का प्रयोग किया है तो सेम डे में पाक करना चाहिए। तो लार्ज स्केल में थोड़ा बनाने में 3 to 5 डेज लग जाता है। मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं ना सर, वो 60 लीटर्स का रहेगा, मतलब फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट या 60 लीटर तो रहेगा? हाँ। ओके। उसमें कभी कभी क्या होता है कि 1 लीटर 2 लीटर लॉसेस होता है। लॉसेस 2 कारण से होता है। एक कल का द्रव्य थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर प्रॉपर टाइम में अगर आप फिल्ट्रेशन नहीं करते तो भी लॉस होने की संभावना रहती है। पाक चेंज होने की भी संभावना रहती है। अगर प्रॉपर टाइम में आपने फिल्टर किया तो भी अगर 60 लीटर का बैच होगा तो 2 लीटर कम से कम लॉस होगा ही। उस लॉस को बचाने के लिए ये सब टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसमें अभी डिकॉक्शन बन रहा है। ये डिकॉक्शन आज शाम तक इसको फिल्टर करेंगे और फिर उसमें ऑयल और कल्क डाल के तेल पाक किया जाएगा। ये थोड़ा हमारा पैकेजिंग एरिया है। कोई भी टैबलेट जो बन गया या चूर्ण बन गया तो एक निश्चित क्वांटिटी, चाहे 250 ग्राम का हो या 500 ग्राम का हो या 1 kg का, लेने के बाद हम इसको पैकेज करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट स्टोर में, ये हमारा ये फिनिश प्रोडक्ट एरिया है। आप ये जितने भी देख रहे हैं, आफ्टर पैकिंग
एक दिव्य कंटेनर में उसको स्टॉक किया गया है, ताकि यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है 4 मंथ, इसलिए सभी पर्टिकुलर ड्रग को रखा गया है। अलग अलग ड्रग का अलग अलग आफ्टर प्रिपरेशन स्टॉक किया गया है सेपरेट कंटेनर में। जैसे बहुत सारे हमारा गुगलू प्रिपरेशन है, जैसे रासना गुगलू देख रहे हैं, सिमनाथ गुगलू देख रहे हैं, गोक्षुरादि देख रहे हैं, अमृतोत्तर नहीं, ये योगराज गुगलू है। इस तरह से लगभग 10-12 गुगलू प्रिपरेशन है। इसी तरह बहुत सारे पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं, बहुत सारे टैबलेट फॉर्म में, रसौषधि भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो ये अलग अलग सभी का अब ये गंधक रसायन आपको बताए थे कि सामान्य गंधक का 50 रुपीज़ है, शोधन के बाद 1200 रुपीज़ होता है, और गंधक रसायन का कॉस्ट नियर अबाउट 5000 रुपीज़ हो जाता है। तो ये गंधक रसायन का प्रयोग स्किन, किसी भी तरह का स्किन डिसीजर्स होगा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। इसी तरह बहुत सारे इस तरह हमारा कषाय और तेल प्रिपरेशन का भी 100 और 200 ml का पैकिंग है। ये च्यवनप्राश का यूज किया गया है। ये च्यवनप्राश का हमारा यही पैकिंग है 100 ग्राम का, हाफ के जी का। ये पैकिंग करके हम हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट एरिया हो गया। सर अभी जब मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं शास्त्रोक्त फॉर्मुलेशन शास्त्र से ही लेते हैं ज़्यादातर। कुछ फार्मेसीज का कुछ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ टेक्स्ट रहता है, चॉइस ऑफ लाइक कुछ केरला वाले अगर प्रिपेयर करते हैं सहस्र योगा अष्टांग हृदय से कुछ रेफरेंसेस लेके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। आपका ऐसा कोई फेवरेट एरिया ऑफ रेफरेंस है सर? मतलब कोई टेक्स्ट से ही ज़्यादातर हम लोग फार्मुलेशंस बनाते हैं, या आप कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ से लेना है? क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट सेम फार्मुलेशंस को डिफरेंट तरीके से बनाने का कोई विधान होता है। सो आप उसका फाइनल डिसीजन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेना है, क्या करना है? आपका कोई फेवरेट चॉइसेस है क्या? सो मतलब ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स कौन सा रेफरेंसेस से बनता है? सो मुझे पता है कि एक ही रेफरेंस में सभी नहीं मिलता है, सो इट इज़ स्कैटर्ड, हमारा रेफरेंसेस स्कैटर्ड है। लेकिन आपका प्रेफरेंशियल एरियाज कौन सा है? प्रेफरेंशियल टेक्स्ट ट्रेटाइजेस रेफरेंसेस कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ग्रंथ जो है उसकी जो ऑथर है वो डिफरेंट पार्ट से आने वाले हैं। जैसे वैश्य रत्नावली के ऑथर है वो बंगाली कल्चर से। इसी तरह बहुत सारे दूसरी बात सहस्र योग है, उसमें 1000 प्रिपरेशन का तो नाम आया है, लेकिन जब आप श्लोका देखेंगे और उसका प्रिपरेशन का नाम देखेंगे तो बहुत सारा लैंग्वेज जो है, शब्दों का नाम जो है मलयाली लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे कोट्टम चुक्कादि तैल, कोट्टम मीन से कुष्ठ, चुक्का मीन से सुंठी, आदि तैल। वो नॉर्थ वाले को पता ही नहीं चलेगा ये कोट्टम चुक्कादि है क्या, लेकिन उसी को अगर कुष्ठ सुंठी आदि कहा जाए तो फेमस है। तो नाम वही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और सिनोनिम का जो मलयाली लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है, इसलिए जो केरला ट्रेडिशन करते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है। ड्यू टू उसका जो सिनोनिम मलयाली लैंग्वेज में है, इसलिए उसका ज़्यादा यूज वहाँ पे करते हैं। आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो वैश्य रत्नावली का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। तो एरिया विशेष में अलग अलग ग्रंथ की प्रायोगिकता है, और कोई ग्रंथ एरिया विशेष का नहीं है, वो आयुर्वेद का है। कोई भी ग्रंथ है वो आयुर्वेद का है। एक एग्जाम्पल मैं कोट्टम चुक्कादि का बताया, इरिनील कोलंबो। आई में एक प्रिपरेशन होता है जिसको मलयाली में क्या कहते हैं, और उसी को दूसरे लैंग्वेज में नारिकेल रसक्रिया। तो ये शब्दों का खेला है, और शब्दों के भिन्नता से होने से कारण बहुत सारे मलयाली के नाम होने के कारण मलयाली वाले उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रचलन में लाते हैं। और सहस्र योग जो है वो 1-2 बुक नहीं है, डिफरेंट सहस्र योग 4-5 मिलेंगे अलग अलग क्षेत्रों में सबका। अभी दिल्ली से पब्लिश्ड एक सहस्र योग है, उसका कॉस्ट 125 रुपीज़ था, लेकिन आउट ऑफ प्रिंट था, कॉस्ट कुछ नहीं है। तो एरिया विशेष से अब देखेंगे लैंग्वेज के कारण लोगों को उससे नज़दीकता रहती है।
नॉर्थ में ज़्यादा भैषज रत्नावली का प्रयोग होता है, इधर ज़्यादा सहस्र योग का प्रयोग होता है। साथ ही साथ अष्टांग हृदय का, अष्टांग संग्रह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एरिया विशेष में लैंग्वेज के कारण अपने अपने शास्त्रों के नज़दीक लोग आने का प्रयास करते हैं। समझे कि नहीं? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको है जो आप उसको जानते हैं, ड्यू टू नेम आपके माइंड में होता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन हमारे यहाँ आपका प्रेफरेंशियल कौन सा है सर? कहाँ से आप फॉर्मुलेशन से? हम ज़्यादातर योग रत्नाकर का यूज़ करते हैं, भैषज रत्नावली का यूज़ करते हैं, सहस्र योग का यूज़ करते हैं और भैषज संहिता का यूज़ करते हैं। क्योंकि आप सहस्र योग में देखेंगे एक ही प्रिपरेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 प्रसारणी तैल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब इतना बनाना छोटे मोटे फार्मेसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आप इंग्रेडिएंट वाइज देखेंगे तो 1-2 इंग्रेडिएंट का आगे पीछे होता है, लेकिन उसमें सेलेक्ट करना चाहिए कि बेटर कौन सा हो सकता है, नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3। वैसे द्रव्यों का प्रयोग, वैसे प्रिपरेशन का प्रयोग करना चाहिए। बुक में तो बताया गया बहुत सारे चीज़। अब श्वास कुठार रस लेंगे 6-7 रेफरेंस मिलेगा। सिम्बनाद गोगुलू लेंगे 8 रेफरेंस मिलेगा। लेकिन हमें इजी हो और दूसरा बात रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और इजी हो, इसी चीज़ को लेना है। इजी नहीं भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है तो वैसे द्रव्य का, वैसे प्रिपरेशन का अनुकरण, केवल नाम पे नहीं भागना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड है तो उसका यूज करना चाहिए। सो एक और सवाल है सर, बिफोर वी फिनिश। आप रसशास्त्र और भैषज कल्पन का एक्सपर्टाइज्ड पर्सन है, सो आप इसे टिप्स मिल सकता है हमारे स्टूडेंट्स को, फ्यूचर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को, और जो ऑलरेडी है प्रैक्टिस में। एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है हर्बो मिनरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने में, हेजिटेट करते हैं कुछ लोग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी जब हम कांटेक्ट करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, वो भी जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है सो गूगल में सर्च करते हैं या उनका इंग्रेडिएंट्स क्या है, इमीडिएटली कांटेक्ट करते हैं, ये हर्बो मिनरल प्रिपरेशन है, इज़ इट सेफ इनफ? ये तो है सर अभी तक, लेकिन हम लोगों को पता है कि इतना इफेक्ट, आपने अभी प्रैक्टिस ओरिएंटेड और थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, ऐसा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए आपने बोला है। सो कहीं डिसीजेस में ये रसौषधि जो है वो रामबाण की तरह, सो लाइक वन शॉट या इफेक्टिव रेमेडी के तरह प्रूव होता है। सो नेक्स्ट जनरेशन प्रैक्टिशनर्स या न्यू प्रैक्टिशनर्स को आप क्या टिप देना चाहते हैं? क्या हेजिटेट करना चाहिए? कहाँ है रसशास्त्र, कैसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए? विदाउट हेजिटेंसी क्या करना है? सो हमारे डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को एज एक्सपर्टाइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट आप एक टिप और क्या बोलते हैं, ए वेरी गुड एजुकेशनल टिप फॉर द प्रैक्टिस क्या देना चाहते हैं, वो थोड़ा रोशनी डालिए सर इस पर। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज मॉडर्न वाले भी क्लेम करते हैं कि जो मेटेलिक भस्म है वो ऑर्गन को डैमेज करते हैं। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। हमारे आचार्यों ने मर्क्यूरी को भी हाईली टॉक्सिक माना और 12 टाइप का दोष का वर्णन किया। आयुर्वेद प्रकाश तो यहाँ तक बता दिया, 8 महादोष नागो बंगो मलो बहनी चापल्यंच विषमगिरी असह्याग्नि महादोषा निसर्गात पारदे स्थिता। दोष बताया, हमारे आचार्यों ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसके निवारणार्थ शोधन टेक्निक डेवलप किया, विशेष शोधन टेक्निक डेवलप किया, संस्कार डेवलप किया। इसकी ज़रूरत क्या थी? सामान्य शोधन किया, पर्टिकुलर दोष के लिए पर्टिकुलर ड्रग के साथ उसका विशेष शोधन किया। नाग धूमेष्टिका हट्ट विलासिनी नाम सोर्णेस्तु चूर्णे परिमध्य सूतम प्रक्षालय अम्ल जलेन सम्यक ततो रसो मुंचति नाग दोषम। बंग दोष मृगे क्षणा अंकोल निशोथ चूर्णे सूते जाति हतु बंग दोषम। मल दोष दोषम मलोत्थम खलु राजवृक्ष गृह कन्या हरति मलम। तो इस तरह के पर्टिकुलर ड्रग के साथ शोधन किया, फिर भी वो टॉक्सिक इफेक्ट है। उस टॉक्सिक इफेक्ट को फिर दूर करने के लिए संस्कार किया, फिर भी टॉक्सिक इफेक्ट है। लेकिन जब हम उसको नए कंपाउंड में कन्वर्ट करते, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी के रूप में नहीं लेते,
जब तक हम उसको नए कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करते तब तक इंटरनल प्रयोग के लायक नहीं होता। अब नए कंपाउंड में कजली बना लिए, नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, पर्पटी बना लिए, नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, पोटली बना लिया, कुबीपको बना लिया, नए कंपाउंड में कलरिया रसायन बना लिया। तो वहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखने का है। क्लासिकल टेक्स्ट कोई गलत नहीं है और आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन शॉर्टकट मेथड का यूज़ बहुत सारे फार्मेसी करते हैं और उसमें उसका भी दोष नहीं। टेक्स्ट में ही रेफरेंस दिया है। एक एग्जाम्पल, अब्रक भस्म 20 फुट का भी वर्णन किया, 500 फुट का भी वर्णन किया, 1000 फुट का भी वर्णन किया। बिन सत्यादिरसास्तस्तु पुटे रोग निवृत्तये 20 to 100 फुट फॉर जनरल डोजेज के लिए, डिसीज के लिए। शतादिस्तु सहस्रांत 100 to 1000 फुट फॉर महारोगों के लिए या रसायन प्रयोग के लिए। तो इस तरह का वर्णन किया। लेकिन आप देखेंगे मारण में, अब्रक मारण में 10 फुट का नाम आया, 3 फुट का भी नाम आया। गांधर्व पत्र तो न गुरेन सहभावितम अधो ऊर्ध बटपत्राणी मिलियते त्रिपुटे खगे। तो टेक्निक वो लोग शॉर्टकट मेथड अपनाता है। आपको पता नहीं है किस मेथड से शोधन किया गया है, मारण किया गया है। तो हमारा इस पर टिप यही रहेगा कि कभी भी कोई भी मेटेलिक मिनरल्स से रिलेटेड अगर ड्रग का आप इंटरनल यूज करते हैं तो हमेशा स्वल्पा ही मात्रा विपला गुणश्च सद्यो ही तद्दीपनपाचनश्च डोज पे कंट्रोल रखिए। और कोई भी ड्रग आप सक्सेस तब होंगे, ड्रग, डोज, ड्यूरेशन एंड डिसीज पे आपका कमान होगा। ड्रग, डोज, ड्यूरेशन एंड डिसीज। कोई भी ड्रग अगर कोई आ गया तो हम उसको 6 मंथ तक यूज करें, नहीं, जरूरत नहीं है। हम रसौषधि के द्वारा उसको कंट्रोल कर लें, फिर सहायक औषधि के साथ उसके लंबे समय तक प्रयोग करें। कोई टॉक्सिक ड्रग हम उतना नहीं दे सकते। दूसरा, जो मॉडर्न वाले का कंप्लेन है तो ऑर्गन को डैमेज कर देता है, ड्यू टू डिपेंड करता है कि आपने बनाने में मेथड कौन सा टेक्निक किया। अगर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन हुआ, प्रॉपर इंसिनरेशन हुआ एंड प्रॉपर डोज में आप यूज किया, कोई भी इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं होगा, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर रूप से शोधन नहीं किया गया, प्रॉपर ढंग से उसका मारण नहीं किया गया और अपने डोज प्रॉपर नहीं लिया, ओवर डोज लिया, तो उसका इफेक्ट निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हमारे यहाँ बताया, मृतानि लोहानि रसी भवन्ति निद्रानि युक्तानि महामयाश्च अभ्यास योगा दृढ़देह सिद्धिम। कि मृद भस्म, आप कोई भी हर्बल ड्रग खाते हैं तो उसका पाक होने के बाद उसका रसगुण वीर्य विपाक का प्रभाव बाद में देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी रसौषधि का यूज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो मिक्स होता है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में इमीडिएट फैलने वाला है और क्विक एक्शन करने वाला है। तो वहाँ हमेशा डोज पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। कभी आप देखेंगे 2 to 4 रत्ती मीन्स 2 रत्ती मिनिमम डोज है, 4 रत्ती मैक्सिमम डोज है। अब उसमें बलाबल को आप डिसाइड कीजिए, प्रबल बल है, हीन बल है, मध्यम बल है, उस पर आप कर सकते हैं। तो डोज पे अगर आपका रहेगा कंट्रोल, देन ड्यूरेशन, कितने दिनों तक आप हड़ताल का यूज करते हैं, 15 दिन से ज़्यादा नहीं देने का है। किसी पेशेंट को आप 1 month 2 month दे दिया, टॉक्सिक इफेक्ट होगा 15 डेज देने के बाद, क्योंकि आर्सेनिकल कंपाउंड है। AS2S3 AS2S3 मनसिला AS2S2। तो इस तरह से आर्सेनिकल कंपाउंड का ज़्यादा प्रयोग नहीं करने का है, मर्क्यूलर प्रिपरेशन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करने का है। लेकिन प्रॉपर डोज में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि प्रॉपर ड्यूरेशन एंड प्रॉपर डोज में यूज किया जाए। तो हमारे मॉडर्न वाले बहुत क्लेम किए कि आयरन भस्म ये करता है। आज आयरन का यूज मॉडर्न वाले कर रहा है। फॉलिक एसिड क्या है ना, आयरन का प्रेफरेंस कर रहा है। जिंक का यूज कर रहा है वो। हमारे यहाँ यसद का यूज किया गया, जिंक ऑक्साइड का यूज किया, इंटरनल यूज किया कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको पर ग्राम, हाँ, बॉडी के पर केजी, हाँ, 5 to 10 mg का प्रयोग करना चाहिए। आज कोरोना पे जब उतना ज़्यादा हुआ है तो बड़ी बड़ी साइंस भी जिंक का प्रयोग करने के लिए बताया। आज कॉपर पे हमारे ऊपर कंप्लेन हो रहा था, कॉपर। मॉडर्न वाला कॉपर का यूज कर रहा है, आयरन यूज कर रहा है, कॉपर यूज कर रहा है, जिंक यूज कर रहा है। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन अभी तक वो इंटरनल यूज नहीं किया है। लेकिन थोड़ा सा डेंटिस्ट लोग मर्क्यूरी एंड सिल्वर का एक पेस्ट गम आता है, अमलगम, फिलिंग के लिए उसका यूज कर रहा है डेंटिस्ट। तो हमारे आयुर्वेद में मर्क्यूरी के रूप में नहीं करते हैं, उसको नए कंपाउंड में
कन्वर्ट करके अगर यूज़ किया तो 3 जगह आप अगर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग उसको ड्रग कैटेगरी में रखेगा, डोसेज ऑफ ड्रग उस पर आपका कमांड होना चाहिए, देन ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग उस पर आपका कमांड होना चाहिए, एंड लास्ट में डिसीज इंडिकेशन उस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। नहीं तो रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये 4 पे आपका कमांड है, रिजल्ट 100% मिलेगा। एक बताया गया पर पटी, आपके माइंड में एक ही चीज़ है, ग्रहणी रोगाधिकार। लेकिन जब देखेंगे ग्रहणी गजमर्दन दक्षतरा भयकाश जलोदर गुलमहरा अतिसार अति ब्रह्मदाहरा ज्वर शोथ हरा रस परपटिका, सेम परपटि जलोदर में, गुल में, शोथ में, ज्वर में, कैसे अनुपान भेद से। अनुपान का जो सिलेक्शन आपका होना चाहिए वो रिलेटेड टू डिसीज होना चाहिए, तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप प्रॉपर डोज में देते हैं, अब जैसे ताम्रभस्म में शास्त्र ने बताया कभी भी सिंगल यूज नहीं करना चाहिए। आपने देखा और सिंगल यूज किया, बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गया, ये दोष आपका, ताम्रभस्म का नहीं है, वो तो टॉक्सिक है, लेकिन आपने सिंगल यूज किया। जयपाल का नाम सुना होगा, जयपाल तीव्र विरेचन कराने वाला है, लेकिन सिंगल यूज नहीं करना चाहिए, उसको ग्राही द्रव्य के साथ यूज करा, आपने सिंगल यूज किया, ये दोष मेरा है। तो वैसे द्रव्यों का सिंगल में प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी अदर ड्रग के साथ प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपर डोज में प्रयोग करना चाहिए, और उससे होने वाला एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी नॉलेज रखना चाहिए। अगर इमीडिएट कुछ हुआ, फर्स्ट स्टॉप मेडिसिन, देन गिव द ट्रीटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और औषधि का यूज कीजिए, लेकिन वही चीज़ हमेशा कंट्रोल में उसका डोसेज रखना है। आज से 20 ईयर पहले आयुर्वेद में इंजेक्शन था, नाम सुना है? इंजेक्शन था। हम लोग जब स्टूडेंट थे 180 इंजेक्शन था रुद्रदेव फार्मेसी का, बुंदेलखंड फार्मेसी का, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रेजुएट उसको प्रमोट नहीं कर सका, बंद हो गया कंपनी से। तो कोई भी रसौषधि यूज करना गुनाह की नहीं है, डोज पे करना चाहिए। हमारे यहाँ डोज भी बताया गया, हर ड्रग का डोज बताया गया। एक असलो का कोई भी आप लीजिए, उसमें प्रोपोर्शन बताया गया, कितने अनुपात में लेंगे, कहाँ इंडिकेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये तीनों चीज़ बताया गया। उस पर अगर हमारा कमांड होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रसौषधि का प्रयोग कर सकते हैं, स्मॉलर डोज से स्टार्ट करना है, और उसके प्रति एडवर्स इफेक्ट के प्रति भी जागरूक रहने का है। और जब स्मॉलर डोज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम तो आज हमारे फिजिशियन कोई बनाते नहीं हैं, सब रेडीमेड लेते हैं, रेडीमेड लेते हैं। तो रेडीमेड लेने के लिए लीजिए, यूज़ कीजिए, लेकिन एक फिजिकल टेस्ट तो कम से कम कर लीजिए। प्रॉपर्टी फोल्ड करके देखिए, अगर वो फोल्ड हो रहा है इट मीन्स मृदुपाक। उसका कलर देखिए, अगर रेड कलर हो गया है तो डेट खरपाक, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये तो हम बिना लैब का भी कर सकते हैं। तो स्मॉलर डोज से स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और याद कीजिए, रखिए कि मर्क्यूरियल प्रिपरेशन करने से पहले बॉडी को शुद्धि करना जरूरी है। उसको कहते हैं क्षेत्रीकरण। क्षेत्रीकरण किए बगैर अगर बॉडी की शुद्धि नहीं करते और मर्क्यूरियल प्रिपरेशन देते हैं तो उस तरह से काम नहीं करेगा। जैसे ऊसर भूमि में आप अच्छी तरह का बीज अगर डालते हैं, वो उसमें अंकुरण नहीं आएगा। ऊसर भूमि मीन्स अल्कलाइन अर्थ। उसी तरह आपका मर्क्यूरियल प्रिपरेशन भी काम नहीं करेगा अगर बॉडी की शुद्धि किए बगैर यूज करते हैं। तो एक बॉडी की शुद्धि करना चाहिए। अब शुद्धि में बताया पंचकर्म, हमारे चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया, हमारा रसशास्त्र भी बताया। क्या बताया रसशास्त्र? दीपनम स्नेहनम स्वेद्यो बमनम विरेचनम तथा एते पंचकर्माणि ज्ञातव्यानि विषग्वरे। दीपन, स्नेहन, स्वेदन, बमन एंड विरेचन। हमारे चरक ने कहाँ से स्टार्ट किया? बमन से स्टार्ट। यहाँ दीपन, पहले पेशेंट को दीपन डाइजेशन बढ़ाने की मेडिसिन दिया जाए, उसके बाद स्नेहन किया जाए, देन बमन किया जाए, दीपनम स्नेहनम स्वेद्यो, स्वेदन किया जाए, देन बमनम विरेचनम तथा। विरेचन कराने से दो उद्देश्य है कि कोष्ठ शुद्धि और कृमि वगैरह है तो उसको भी आउटपुट करने का है। ये किए बगैर रसौषधि यूज के लिए आजकल हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, दिन में ट्वाइस थ्राइस कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। बताया प्रभाते भक्षये सूतम। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन मॉर्निंग में यूज करना चाहिए।
हम कभी भी लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। दूसरा बात, मॉलिक्यूलर प्रिपरेशन लेने के बाद 6 आवर तक कुछ भी नहीं लेने का है, देन पत्रिका यूज करना चाहिए। तो ये सब अगर आप करेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा। रस औषधि का प्रयोग जम के कीजिए, लेकिन हमेशा लोअर डोज से शुरू कीजिए और उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी कॉन्शियस रहिए। नहीं तो ट्रीटमेंट आप दीजिएगा और कोई कॉम्प्लिकेशन आने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजिएगा तो वहाँ से आपकी बदनामी होगी। इसलिए उससे आया था 2-3 दिन पहले, भल्ला तक का प्रॉब्लम आ गया था, फ़ोन किया था, सर क्या क्या करें। उसी जगह टेक्स्ट में लिखा है कि आप विविधक का कल्क का यूज़ करो, धान्यक का कल्क का यूज़ करो, तो वो सब थोड़ा माइंड में रखने का है। So that was a small, in fact, a elongated tour of Rasashastra Vaishya Kalpana department and also our pharmacy, newly renovated pharmacy, new additions and what inclusions have been done in the department. Kind enough was our Honorable Mishra sir to have. He is always not only a resource person, not only a highly qualified person in this particular department and also the subject. He not only carries that immense treasure of knowledge of Rasashastra and Vaishya Kalpana, he is patient enough always to guide anybody who comes to him, and he has guided us extensively in the tour. Not only he just took us on the tour of the department and shown us what are the new additions, inclusions and also the renovations. He also explained the procedures, how they need to be done, how the medicines are prepared, how including the pills, maybe the kashayams, the asava, arishta, the storage room and also everything, almost the raw drugs where they are kept, how they need to be stored, the pill making and also the oil making procedures and also the furnaces here in the new machineries, the new technologies used, the differences between the Shastra and technological inclusions in the preparations of the medicines. Such extensive knowledge I personally gained when I went on tour through our department, our own college department of Rasashastra Vaishya Kalpana, and also this is also a post-graduation department, and so many students and so many PG scholars are nurtured under the able guidance of our Honorable Mishra sir. He was kind enough, and as I said already, not only immense knowledge but the patience he carries and the patience with which he explains each and everything in such an elaborate way. I think after seeing this video, you people also will appreciate and would have tapped some knowledge from the great expertise of our Honorable Mishra sir. I once again on behalf of our department, so I belong to Kaichikisa department, and on behalf of our college and on behalf of all of you, our ex-alumnus and our students and our PG scholars, I heartily thank our Honorable Mishra sir for guiding us, for teaching us new things about Rasashastra, Vaishya Kalpana, their values, their applications in the clinical practice, and especially the final thing what he said about the Rasaushadas in the field of practice. He said just use them but be cautious, be knowledgeful, know every bit of the Rasa Aushadha what you are using in your clinical practice, only then it will be successful. Of course, they are the greatest medicines and sometimes they are the medicines of choice in our clinical practices for so many conditions, but we need to be judicious and we need to know when, where, how, why we need to use those medications. Thanks so much for your tips and guidance, sir. So once again, thank you heartily. So thank you, Mr. Sir. So, and hearty thanks to our Dr. Kiran from our Kaichikisa department, PG department of Kaichikisa, our PG scholar. So he was kind enough to be with us with the camera. So I know it is a tedious job to lengthily shoot things. So all the credit of the entire coverage of the tour of Rasashastra and Vaishya department in such magnification pictures which you people are seeing right now. So the entirely credit goes to Dr. Kiran. Thank you, Kiran, for your video coverage. Thank you.